بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میرینٹری ہوم میں نوکری کرتی ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈلیوری ہو جانے پر ماں اور بچہ دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے جسے ہمیں بڑے ہسپتال ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے۔ کیس بگڑنے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر مکمل عمل نہیں کرتی، دوائیاں پابندی سے نہیں لیتی، غذا پر کچھ خاص توجہ نہ ہونے پر کیس کو بگڑنا ہی ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر دھیان دے۔ اچھی غذا سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس روز ہسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس لیے اس شہر میں گرمیوں میں چھت پر سونے کا رواج عام ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی، لیکن کھڑکی سے سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزرتا نظر آ جاتا تھا اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ ڈلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر بعد ہسپتال میں اپنی انٹری کی کھانا پوری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا، جس کا نام معراج تھا۔ یہ چیزیں فوری لے آئیں۔ جی بہتر، کانسٹیبل معراج پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ اسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور تھا۔ وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر ایک گھنٹے بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی 2 آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا تھا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا تھا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ میں سمجھی کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا۔ وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا قہقہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
फिर भी मैंने इनसे पूछा, ये कहका किसने लगाया था? इस बच्चे ने ही लगाया है, नर्स शैला ने घबराते हुए कहा। ये कैसा बच्चा है? नर्स शगुफ्ता ने कहा। मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा बच्चा मैंने पूरे करियर में नहीं देखा, मैंने खौफ से लरसते हुए कहा। अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस होते रहते हैं जिनमें किसी बच्चे की टांगें जुड़ी होती हैं, किसी बच्चे के 2 धड़ होते हैं, किसी बच्चे के हाथ जिस्म से जुड़े होते हैं। इस तरह के बच्चे कुछ वक्त जीकर इंतकाल कर जाते हैं, मगर इस तरह का बच्चा मैंने पहली बार देखा था, इसलिए खौफ आना फितरी था। मेरे साथ जो नर्सें थी वो भी बुरी तरह खौफजदा थी। अब क्या करें? नर्स शगुफ्ता ने कहा। मैं इसके बाप से बात करती हूँ। बच्चे को लेकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे घबराया हुआ देखकर इसका घबराना फितरी था। वो लपक कर मेरे पास आया। जी डॉक्टर साहिबा, खैरियत है ना? इसने पूछा। बच्चे की माँ खैरियत से है, लेकिन मैं कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या हुआ? बच्चा खैरियत से है ना? मिराज ने पूछा। मैं सोच में पड़ गई। इसे कैसे बताऊं कि इसके यहाँ कैसे अजीबोगरीब बच्चे की वलादत हुई है। मेरी मसलसल खामोशी पर मिराज के चेहरे पर परेशानी से गहरी लकीरें बनती जा रही थी। मैं वापस रूम में गई और एक नर्स को इशारे से बच्चा बाहर लाने को कहा। नर्स के बच्चे को लाने पर मिराज लपक कर इस बच्चे की तरफ आया, लेकिन जैसे ही इसकी बच्चे पर नज़र पड़ी वो घबरा कर पीछे हो गया। इसका दिमाग माउफ हो गया था। वो कभी मुझे और कभी बच्चे को देख रहा था। कुछ देर तक इसकी यही हालत रही। फिर इसने अपना चेहरा हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इस तरह रोने पर मुझे हैरत का झटका लगा और मैं हिम्मत करके इसके करीब गई और इसको दिलासा देने की गर्ज से बोली, हिम्मत से काम लो मिराज, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर, सारा कसूर मेरा ही है डॉक्टर साहिब। वो जैसे फट पड़ा। तुम्हारा कसूर? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हाँ डॉक्टर साहिबा, ये कुदरत ने मुझे सज़ा दी है। किस बात की सज़ा? मैंने पूछा। मेरे बुरे अमाल की सज़ा। पुलिस के महकमे में आने के बाद मैं खुद को खुदा समझ बैठा था। मुल्जिमान से दोस्ताना रवैया, कमज़ोर और बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद करके रकूम बटोरना मेरा मशगला बन गया था। मेरे अफसर भी मुझसे इसलिए खुश थे कि मैं इनको कमा कर दे रहा हूँ, और कमा कर देने वाले अहलकार अफसरान की निगाहों में दादो तहसीन पाते हैं। यही मेरे साथ भी था। अफसरान का मंसूर नज़र बनकर मैं कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता था कि जिसमें माल हासिल हो। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरी पुलिस में नौकरी लगी थी, मेरी ड्यूटी एक चौक पर रात में लगी थी। रात का 1 बज रहा था। सड़क सुनसान पड़ी थी। ऐसे में एक नौजवान का वहाँ से गुज़र हुआ। मैंने इसे अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आया और हैरत से मुझे देखने लगा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी मैं कराची से आ रहा हूँ, इसने बताया। अच्छा, कराची से आ रहे हो? बस का टिकट तुम्हारे पास है? मैंने ज़रा रौब से कहा। टिकट? बस वाले टिकट कहाँ देते हैं? वैसे ही पैसे लेकर रख लेते हैं, इसने बताया। मुझे तो
बहुत होशियार लगता है, जल्दी से बता, चोरी करने का इरादा करके घर से निकला है ना? मैंने इसे घूरते हुए कहा। मैं चोर नहीं हूँ, वो बौखलाया। तू चोर नहीं है, फिर इतना घबरा क्यों रहा है? बोल, क्यों घबरा रहा है? मैं जोर से चीखा। मेरे चीखने पर वो सहम गया। मैंने इसके सहम जाने का फ़ायदा उठाकर इसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसकी दोनों जेबों से कुछ खास रकम बरामद ना हो सकी, सिर्फ 50 रुपए ही निकले। बकौल तेरे कराची से आ रहा है और तेरी जेब से ये रकम बरामद हुई है। सही बता दे, तू चोरी करने ही निकला है ना? मैं सच बता रहा हूँ। कराची में एक मैयत में शिरकत करने गया था और जो रकम लेकर गया था वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जो बच जाए। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे, मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना मैं तुझे लॉकअप में ले जाकर बंद कर दूंगा। मैंने गुस्से से कहा। वो मेरे पैसे? इसने अपने 50 रुपए की तरफ देखते हुए कहा। अभी जा रहा है यहाँ से या चोरी के मुकदमे में लॉकअप में बंद करूं? मैंने घूरते हुए कहा। मेरे गुस्से से घूरने पर वो घबरा कर भाग खड़ा हुआ। इसके इस तरह भागने पर मेरी हंसी छूट गई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। वो मुझे हंसता देखकर पलट सकता था और मेरी पहली पैदा को मांग लेता। मेरे सीनियर साथियों ने मुझे अच्छी तरह से समझाया हुआ था कि जब भी पैदा करना हो अपने लहजे को सख्त बना लो। जितना गुस्सा करोगे पैदा इतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो फिर समझ लो कि तुमने सामने वाले पर जितना रोब डाला है वो सब ख़त्म, और वो तुमसे फ्री होने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर पैदा करना चाहते हो तो फिर किसी और को फ्री होने का मौका मत दो। फिर देखो कितनी पैदा हुई है। मैंने अपना लहजा सख्त करके 50 रुपए की पैदा कर ली थी। पहली पैदा होने पर मैं बहुत खुश हुआ था। अब मेरा ये मामूल बन गया। मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगती, लोगों को बहाने बहाने से तंग करके इनकी जेबों से रकूम निकलवाने लगा था। मैं खुद भी थानों में देख रहा था कि दूसरे अहलकार किस तरह लोगों पर जुल्म करके रकम निकलवाते हैं। तरह तरह से इन पर तशवीश के नाम पर तशद्दुद किया जाता है। इनके अजीज़ रिश्तेदार इन्हें तशद्दुद से बचाने के लिए न जाने कहां कहां से रकम इकट्ठी करके पुलिस अहलकारों को रिश्वत के तौर पर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।